Thank you so much. Why we revise all the lectures? So we should not lose the track we are following. हम अपने सारे जो पैगामात हैं उनकी रिवीजन उसका यादा इसलिए करते हैं ताकि हम उनको भूल ना जाएं, उस ट्रैक को खो ना दें. So almost maybe 16 or 18 years back I studied this. 16 या 18 साल पहले इन सारी चीज़ों का मैंने मुतालिया किया था. And then I forgot. और मैं भूल गया. Because of the time involvement and the ministry busyness. मिनिस्ट्री की मसरूफियत की वजह से और कुछ वक्त की वजह से मैं उन चीज़ों को भूल गया. Because when the things are not happening, you leave them. क्योंकि जब चीज़ें अभी रूनुमा नहीं हो रही होती तो फिर आप उन्हें छोड़ देते हो. And when they are back on the scene, you should revisit them. लेकिन जब वो मंजर आम पर आती हैं तो फिर आपको ज़रूर उन्हें देखना चाहिए. I studied books about this prophecy, the Middle East in the prophecy, the US in the prophecy. Every book was with me, the Daniel, the Beast, every detailed book was with me. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं दानियल की रोया के बारे में और दूसरे कुछ मुल्कों के हालात के बारे में. So I did not waste my time of my youth. मैंने अपनी जवानी का वक्त जो है उसको ज़ाया नहीं किया. I took every opportunity to invest in my own life. मैंने हर एक मौके का इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगी में सरमायाकारी करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए. When you read, when you listen, you invest in your own life. जब आप पढ़ते हैं और कलाम को सुनते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सरमायाकारी कर रहे होते So हैं. you are not easily deceived. और फिर आप आसानी से धोखा नहीं खा सकते. Whatsoever and whosoever is preaching, you don't care about. कोई भी पैगाम सुना रहा हो, कुछ भी सुना रहा हो, लेकिन आपके पास एक यानी बैकग्राउंड होती है, आप धोखा नहीं खा सकते. So that's why I want to feed you people strong meat. इसीलिए मैं आप लोगों को एक ठोस ग़ज़ा देना चाहता हूँ. So when you will sit in a end time prophetic seminar or conference, you will not be surprised. क्योंकि जब कभी आप ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाएं जो कि आखिरी वक्त के बारे में हो तो आप हैरान ना हो उनकी गुफ्तगू से. Obviously people will organize now because the times are closing. और यकीनन लोग जो हैं ऐसे जो प्रोग्राम है उनका मुनक़्क़द करेंगे क्योंकि वक्त करीब है. And they will be maybe giving some different information other than this. और हो सकता है उसमें इससे मुख्तलिफ मालूमात भी आपको मिलें. Yet you will be sitting in that seminar with this complete and comprehensive detailed teachings. लेकिन आप उस सेमिनार में एक पूरी मालूमात के साथ बैठे होंगे. So you should be confident. और आप पुरइत्माद भी होंगे. And not be deceived easily. और आपको कोई धोखा नहीं दे सकेगा. Okay? So I'm playing my own part, but rest is with you. How much time you revisit the lectures, read them again and again. मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ और बाद का जो हिस्सा है वो आपका खुद का है कि आप किस तरह उनको याद करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं सारे पैगामात को. And thank you so much for your comments, your appreciation, your questions as well. आपकी तारीफ का, आपके सारे कमेंट्स का शुक्रिया. And especially those who are watching me online, they are also appreciated. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया. There are some questions those who are not answered by God Himself. कुछ सवालात हैं जो कि खुदा ने भी उनका जवाब नहीं दिया. So might be God did not took them so important to be answered. हो सकता है कि खुदा ने ऐसे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा. Probably they are not necessary. और हो सकता है कि वो ज़रूरी भी ना हो, उनका जवाब ज़रूरी भी ना हो. For a Christian life. एक मसीही ज़िंदगी के लिए. And for the righteous life. और रास्तबाजी की ज़िंदगी के लिए. Where God is silent. जहाँ खुदा खुद खामोश है. We should seek His wisdom. हमें वहाँ पर उसकी हिकमत की तलाश करनी चाहिए. If He shares something, अगर वो कुछ बांटता है आपसे, then we can move on. Otherwise, we should stay silent. तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें खामोश ही रहना चाहिए. So there are some questions, those who are not answered by God Himself. कुछ सवालात हैं जिनका जवाब खुदा ने भी नहीं दिया. Okay. So you can't come up and ask every question and expect that question will be answered. आप हर तरह के सवाल के साथ नहीं आ सकते और तवक्को नहीं कर सकते कि उसका जवाब दिया जाए. All around the globe, no man, some questions no man can answer. और दुनिया में कोई भी शख्स ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता. So I don't want to engage you and confuse you by telling the questions.
और मैं सिर्फ सवाल बताकर ही आपको जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहता जो पूछे गए, which are the questions unanswered by God. यानी वो सवाल जो कि खुदा ने भी जवाब नहीं दिया। So let's move ahead. इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। Amen. So because we are on this earth and some things are related to heaven, हम इस ज़मीन पर हैं और इस ज़मीन की बहुत सारी बातें जो है वो आसमान से जुड़ी हैं, and only heavenly beings can reveal them. और सिर्फ आसमान ही उनको खोल सकता है। And if they will, they will. अगर वो चाहेंगे तो खुलेंगी, Otherwise, we are going there. नहीं तो हम तो वहाँ जा रहे हैं, We will learn up there. वहाँ जाकर हम उन्हें सीख लेंगे। Amen. So we don't have any argument with God that why are you not answering, because we are already about to meet him. हम खुदा से कोई बहस नहीं करते कि आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हम तो उससे एक वक्त मिलने ही जा रहे हैं। We know our destination. हम अपनी मंजिल को जानते हैं। Okay? So we are not in a hurry that God should answer every question on this earth, because we don't have any destiny. इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम हर सवाल का जवाब जो ज़मीन पर ही जान पाए। So you know, some of the questions are answered in your life when you move to ages, move to years, move to different places. You know. आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको ज़िंदगी में मिलता है जब आप ज़िंदगी के अगले अदवार में जाते हैं, अगले उम्र में आगे बढ़ते हैं। And when you move to place, you get the answers. और आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और आपको सवालों के जवाब मिल जाते हैं। Even for me, I got many answers when I started my own church ministry. और मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिला जब मैंने ये मिनिस्ट्री अपनी शुरू की। Otherwise, no pastor could teach me, could give me the proper answers. नहीं तो बहुत सारे सवाल जो है उनका कोई शायद पासवान भी जवाब नहीं दे पाता। So let's talk about the authenticity, because some of the people, they talk about the book of Daniel, that book was just the history book, is just the history book. दानियल की किताब की बात करते हैं, कुछ लोग इसे तारीख की एक किताब समझते हैं, लेकिन हम उसकी मुस्तनद होने पर बात करते हैं। All of this confusion is coming from the Christian scholars. और ये जो कंफ्यूजन है, ये जो अफरा तफरी है, ये ज़्यादातर मसीही स्कॉलर जो हैं, दानिश्वर जो है, उनकी तरफ से। They clearly tells that this book is just the history book, it has nothing to do with the future events. और वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक तारीख की किताब है और मुस्तकबिल से इसका कोई लेना देना नहीं है। If it has nothing to do with the future, why would Jesus quote the scriptures from this book? और अगर इसका आने वाले दिनों से कोई तल्लुक ना होता तो यीशु मसीह इस किताब का क्यों हवाला देते? So when Daniel was prophesying, or the angel was revealing the information, और जब खुदा के बंदा दानियल नबूवत कर रहे हैं या फरिश्ता जो है वो रोया को दिखा रहा है, and events were yet not done in his own age, और वाकयात उसकी अपनी उम्र में अभी पूरे नहीं हुए, it was a prophetic book. तो फिर हम देख सकते हैं कि ये एक नबूवत की किताब है। And it is possible that the once prophetic is now historic. It is possible that once the book was prophetic, but now most of the portions of this book are the history. हो सकता है कि इस किताब के कुछ हिस्से जो हैं वो उस वक्त नबूवती हों, लेकिन कुछ उसमें से अब तारीखी हो चुके हों। Because Jesus quoted, it's enough proof that it is for the future. और जब यीशु ने इसकी तरफ इशारा किया, किताब का हवाला दिया है, तो यकीनन ये आने वाले दिनों के बारे में है। Do you know Jesus quoted the scripture exact verses from this book? क्या आप जानते हैं कि यीशु ने नया अहदनामा में इस किताब में से हवाले दिए हैं, Especially from this specific chapter. और खास तौर पर जो बाब हम पढ़ रहे हैं। So Jesus is not confused about this book, whether it is the historical or the prophetic. यीशु को इस किताब के बारे में किसी तरह की कंफ्यूजन का सामना नहीं है कि ये तारीखी है या नबूवती है। Quoted the Antichrist from this book और इसी किताब से उन्होंने मुखालिफ मसीह का हवाला भी दिया and his activities in the last days. और आखिरी दिनों में उसकी सारे काम, उसकी सरगर्मियों का हवाला दिया, That's enough. और यही काफी है। We don't need any other scholar to confirm that is it the prophetic or the historic. हमें किसी और दानिश्वर स्कॉलर की जरूरत नहीं है कि क्या ये किताब तारीखी है या नबूवती है। No argument is accepted. कोई दलील भी जो है वो काबिल कबूल नहीं। No one can come up with the upper hand on Jesus. यीशु से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। Amen. Amen. So if anybody comes to you and says it's a historic book, अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक तारीखी किताब है, give this answer to that. उसे ये जवाब दीजिए। Amen. I'm giving you the tools. मैं आपको हथियार से लैस कर रहा हूँ, Because people are coming with weapons to attack on you. क्योंकि लोग भी हथियार लेकर ही हमला करने के लिए आते हैं। And you don't need to use big weapons. आपको बड़े हथियार यूज करने की, इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। Just bring one little tool, a screwdriver and
kill that enemy. छोटा सा हथियार इस्तेमाल करें, पेचकस की तरह का, और बस उससे मार दें उसे, It's enough. और यही काफी। Amen. So sometimes the people will be delivered by your answer, and maybe they can get possessed. Yeah, you can interpret. और हो सकता है आपके जवाब से वो लोग रहाई पा जाएं और किसी और तरह के बंधन में बन जाए। So the history book is actually giving us confidence that this much happened and this is about to happen. ये किताब तारीखी होने की वजह से हमें ये बताती है कि बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने को है अभी। So if most of the part of this book happened, अगर इस किताब का बहुत सारा हिस्सा वाकया रूनुमा हो चुका है, it is for sure that Jesus quoted and it will happen. और ये यकीनी बात है कि यीशु ने उसका हवाला दिया और वो बाकी बातें भी होंगी। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। So let us start from the Nebuchadnezzar's dream. Today's topic, आज का हमारा जो उन्वान है वो नबूकदनेस्सर का ख्वाब है, उसकी रोया है, and you will find this in Daniel chapter 2. और ये दानियल की किताब दूसरे बाब में हमें मिलेगा। And maybe you know that scripture. We displayed a picture of the person of the statue. और आप इस हवाला को जानते हैं, हमने एक दिन इसका जो मुजस्मा है वो भी दिखाया था So सामने। I am taking time to give you brief and sometimes detailed teachings. I will not leave the book of Daniel until and unless I bring out information, every related information. और जब तक हम दानियल की किताब में से हर ज़रूरी मालूमात नहीं सीख लेते, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। So Daniel was a prophet, दानियल नबी थे, for sure. और ये एक यकीनी बात है। So it does not matter where you are located. इससे नहीं कोई मसला कि आप कहाँ पर रहते हैं, Whether in captivity or in your own land. आप अपने घर या अपनी सरजमीन पर हैं या आप असीरी में हैं, If you are a prophet, अगर आप नबी हैं, you are a prophet. आप नबी हैं। It does not mean you are a rich man or a businessman or a man who is working for an employer. इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, कारोबार कर रहे हैं, किसी के लिए नौकरी I कर रहे did हैं। not use the word poor. ओके, आप अमीर हैं, कारोबार कर रहे हैं या किसी के लिए काम कर रहे हैं। Yeah, that's the exact interpretation. So because people are so clever, I'm telling you, and they are against me. Okay. They are against me, I'm telling you, on social media. They will cut this and they will use against my sermon against the poverty I have already preached. So need to be careful about. Okay? So I'm not defending poverty. मैं गुर्बत का दफा नहीं कर रहा। So that's why I picked and chose carefully the words. Okay. So I was saying that your spiritual status is not bothered. आपका जो रूहानी मर्तबा है उसको फर्क नहीं पड़ता, Whether you have a big congregation or you have a small congregation. चाहे आपके पास कलीसिया छोटी है या बड़ी है, Whether people are around you or not. लोग आपके पास इर्द गिर्द हैं या नहीं है। Daniel was in captivity. दानियल उस वक्त असीरी में था, Not in his own constructed house. अपने घर में नहीं था। Are you here, people? Yes. So if you are living in a rented place, in an apartment, in a small cottage, whatsoever, आप कहीं भी रह रहे हो, अपने किराए के मकान पे हो, किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो, जो कुछ भी हो, if God is in you, अगर खुदा आपके साथ है, आपके अंदर है, even the king of that territory is under you. तो उस इलाके का बादशाह भी आपके इख्तियार में है, आपके नीचे है। Amen. He cannot move वो आगे नहीं बढ़ सकता without your involvement. आपके मुदखल के बगैर, आपकी इजाजत के So बगैर। be always encouraged, never discouraged. इसलिए हम हमेशा हौसला पाते हैं, बेहौसला नहीं होते Looking at your physical conditions. अपनी जिस्मानी हालत को देखकर। So some people obviously they come up that Daniel was a captive slave. How come is it possible that he could prophesy? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो तो असीरी में था, वो कैसे नबूती बात कर सकता है, He was not a prophet. और वो नबी भी नहीं था। He was brought up in captivity. We can consider Jeremiah the prophet because he was out when he was prophesying. But he was brought up in the captivity. और वो कहते हैं कि दानियल तो जो है वो असीरी में उसकी परवरिश हुई, उसमें वो बड़ा पला। So people of God, look at the big names: Esther, Daniel,
Even Jeremiah, all of them, they could prophesy in the captivity. आप बड़े बड़े नामों को देख सकते हैं, आस्तर को देख सकते हैं, यर्मिया को देख सकते हैं। वो सब लोग जो है वो असीरी में उन्होंने बड़े काम किए, नबूवतें की। So let us jump into the chapter 2. Open it. दूसरे बाब को खोलिए। And you can read it in Urdu. We need to read throughout. Okay. The whole chapter. You need to read it. Maybe if I will need any English, then I will be requesting. Okay. Start. और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया। So it was not just one dream. ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था। Bible says that he dreamed dreams. खुदा का कलाम कहता है कि उसने बहुत सारी रोयाएं देखी। Are you reading in your Bibles? Yes. ऐसे ख्वाब not देखा. So he dreamed dreams. उसने बहुत से ख्वाब देखे। So you may call it a man of dreams. और आप कह सकते हैं कि वो ख्वाब देखने वाला शख्स है। Are you here? Yes. Are you here people? Yes. So it's not. चल आगे बढ़ो फिर दास नहीं आता ना। और उसकी नींद जाती रही। हाँ. So there are some dreams in the nature, they can disturb your sleep order. कुछ ख्वाबों की फितरत ऐसी हो सकती है कि वो आपकी नींद को भी खराब कर सकते हैं। He dreamed dreams. उसने ख्वाब देखे And there was a sleeplessness. और उनके बाद उसकी नींद जाती रही। The disorder in the rest. और उसकी जो आराम में बेतरतीबी आ गई। So you may have these type of dreams. You should know about the natures. हो सकता है आपको भी ख्वाब इस तरह के आते हो, आपको ख्वाबों की फितरत जानने की जरूरत है। So some of the dreams, they disturb your sleep. कुछ ख्वाब हैं जो आपकी नींद को खराब कर देते हैं। Are you here? Yes. Okay, continue. तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं। So wait, when you come up with this type of situation जब आपकी सूरत हाल इस तरह की हो जाए and you are dreaming a dream और आप इस तरह का ख्वाब देख रहे हो and you are disturbed, और आप परेशान हो जाएं उसे देखने के you know, बाद, this is the moment Satan will send people, those who are not godly people. यही वो वक्त है जब शैतान ऐसे लोगों को भेज देगा जो कि खुदा के लोग नहीं हैं। And even though you will share your dreams with them and you will invite them to interpret for you, और आप ऐसे लोगों को दावत दे देंगे कि वो आपके ख्वाब की ताबीर करें, they are wrong people. और वो गलत लोग होंगे। Even though the dream is from God, अगरचे ख्वाब तो खुदा की तरफ से है, but your sleeplessness is causing other spirits and wrong people around you. लेकिन नींद का ना आना आपको इस तरफ ले जाएगा कि आप गलत लोगों को बुला लेंगे। So you need to learn many things from this passage, not just the prophetic end time season. I will teach you the things related to the dreams as well. इसलिए इस हवाले से नबूवत के अलावा और कुछ बहुत सीखने की जरूरत है। Continue. कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। So he called every negative person, spiritual people. He knew. Actually, he is a spiritual man. I'm telling you. ये रूहानी शख्स है, The उसने king. हर तरह के रूहानी शख्स को बुलाया, लेकिन The नहीं। king और knew बादशाह भी। that this has something spiritual, and I need spiritual people around me. और उसे पता है ये रूहानी बात है और इसलिए रूहानी लोगों को उसने अपनी तरफ से बुलाया। But every praying person is not dream interpreter. लेकिन हर दुआ करने वाला ख्वाब की ताबीर करने वाला नहीं होता। Every fasting man is not dream interpreter. हर रोजा रखने वाला ख्वाब की ताबीर करने वाला नहीं होता। On YouTube, please listen me carefully. यूट्यूब वाले भी सुनिए मेरी बात को। Don't share and invite any people around you about your dreams you are disturbed with. और जिस ख्वाब से जो आपने देखा है परेशान है, तो हर शख्स को ना बुला लीजिए, Wait. इंतजार कीजिए, Because if the disturbance started, क्योंकि अगर परेशानी शुरू हो जाती है Satan is ready तो शैतान भी तैयार है अपना काम के to लिए, increase this disturbance. उस परेशानी में इजाफा के लिए। You need to be clever, आपको चालाक चौकस होने की जरूरत vigilant. है और बेदार होने की जरूरत है। I will teach you from this. Okay, continue. चुनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब No, he is saying one dream. He dreamed dreams. उसने ख्वाब देखे, लेकिन अभी वो एक ख्वाब की ही बात कर रहा है। It happens with us and you as well. ये हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है During the night, कि रात के वक्त में if we are having 8 hours sleep, अगर हम 8 घंटे सोते हैं, I have already taught that there are many rapid eye movements during the 8 hours.
और इन 8 घंटों में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हमारी आंख जो है वो हरकत करती है कई दफ़ा। Many rapid eye REM, it is called REM medically, REM, rapid eye movements. इसको हम साइंस के लिहाज से रेम कहते हैं, यानी आंख की हरकत। So when your eyeball is moving, somebody is laying and beside you and sleeping, and the eyeball within this eyelid is moving, अगर आपका जो आंख है ये हरकत कर रहा है और कोई आपके साथ उस वक्त सोया भी है, definitely that person is having a dream. और यकीनन उस वक्त वो शख्स जो है वो ख्वाब देख रहा है। So this eye is actually picturizing the scenario. और ये of the आंख dream. उस वक्त किसी मंजर को देख रही होती है। So you should not disturb that person. आपको उस वक्त में उस शख्स को डिस्टर्ब नहीं करना। That is the moment during 8 hours you are not seeing dreams, you are not dreaming dreams, whole 8 hours. इन 8 घंटों में आप ख्वाब नहीं देख रहे होते। Just the rapid eye movement, that deep sleep movement will cause you a dream. सिर्फ उस वक्त देख रहे होते हैं जब आप गहरी नींद में हो और आपकी आंख जो है वो हरकत कर रही हो। So in whole night, in 8 hours, you will have many deep sleep patterns. और 8 घंटे में काफी इस तरह के पैटर्न हो सकते हैं जिसमें आप ख्वाब देख रहे हैं। And when you go into the deep sleep, you will experience the REM. और आप जब गहरी नींद में जाएंगे तो उस वक्त ये आंख की हरकत का तजर्बा करेंगे। So the king actually went through many deep sleeps during the night. और ये बादशाह भी रात के वक्त में काफी इस तरह के गहरी नींद के झोंकों में चला गया And he had many dreams. और उसने बहुत सारे ख्वाब देखे, But he shared just one. लेकिन उसने सिर्फ एक ख्वाब का यहाँ जिक्र किया। Actually, he did not share, he just started talking about this dream. और दरअसल उसने इस ख्वाब की बात करना शुरू की। Continue. और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। So he is saying that not the sleep is disorder, but my soul is disturbed now. वो सिर्फ यही नहीं कह रहा कि उसकी नींद खराब हुई है, बल्कि अब उसकी रूह जो है उसमें भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। So you know about the dreams. You should be authoritative person. I'm telling you, control your dreams. और मैं चाहता हूँ कि हम सब इख्तियार रखें अपने ख्वाबों पर भी, उनको कंट्रोल कर सकें। It's the another dimension of your spirit. ये रूहानी जो आपका रूह है उसकी एक और सिमत है कंट्रोल करना। When you can control the spiritual activities, the actions, जब आप अपने रूहानी सरगर्मियों को कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। it's the maturity, the authority of the spirit. ये रूह में एक पुख्तगी है और उसका इख्तियार है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते You don't allow things to happen even in your dream. हैं। आप ख्वाब में भी चीजों को नहीं होने देना चाहते। If something wrong will happen in the dream, the transaction is already being done. और अगर ख्वाब में ऐसी कोई बात हो जाती है तो समझे फिर ये एक्चुअल में भी हो जाएगी या हो In the चुकी होगी। spirit, the transaction is being done. और रूह में ये सारा जो मामला है ख्वाब का ये हो चुका होगा And then definitely your soul will be disturbed. और इसके वजह से आपके रूह में बेचैनी आ जाएगी। So come people of God and be mature enough to control your dreams. इसलिए पुख्ता हो, सीखें और अपने ख्वाबों को भी कंट्रोल करें। For example, let me share with you an example. एक मिसाल से मैं समझाता हूँ। I was fasting for 7 days. मैंने 7 दिन का रोजा रखा। It is an event of early marriage life. My early marriage. Yeah. और ये शादी No, के it was before marriage. ओके, ये शादी से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। And in the dream, ख्वाब में 2 men of God appear खुदा के 2 खादम जो हैं मैंने देखे and they brought some edibles for me, the fruit and the sweets. और वो खाने की चीज़ें लाए, फल भी लेकर आए, मिठाई भी लेकर आए, मीठी चीज़ें लेकर आए। And they said that eat and break your fast. और उन्होंने कहा कि ये खाओ और अपने रोज़े को खोल लो। Now you answer what would have been my answer. और देखिए अब क्या जवाब हो सकता है। I controlled. I took the guava. मैंने अमरूद उनको ले लिया I just tried to bite that one. और मैंने उसको खाने की कोशिश की। When my teeth were just piercing into that guava, और जब मैं उसको अपने दांतों से काटने ही वाला था अमरूद को, suddenly I recognized that I am in fasting. तो तब मैंने जाना कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है। Actually, I was not fasting in dreams. मैं ख्वाब में तो रोज़ा नहीं रखे हुए था। In reality, I was fasting in the physical. मैंने जिस्म में हकीकत में रोज़ा रखा हुआ था। But in the dream, I could remember that I am fasting. लेकिन ख्वाब में मुझे याद आया कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ I है should not eat.
और मुझे इसलिए खाना भी नहीं चाहिए। I took that guava out of my mouth and I put everything. I said that leave that and you can go. I'm fasting. और मैंने उस अमरूद को एक तरफ रख दिया और मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं रोजे में हूँ, आप जा सकते हैं। And they were demons disguised as men of God. और वो बदरूहें थी जो कि मर्दे खुदा की शक्ल में मेरे पास आ गई। Had I eaten those edibles, I would have been possessed. और अगर मैंने वो चीजें खा लेता तो मैं पोजेस हो सकता था। So be careful when you are offered any item to eat in the fasting season, in the dreams. और जब आप रोजे में हैं तो खास तौर पर ख्वाब में भी आपको अलर्ट रहना है कि कोई ऐसी चीज आपको खाने को ना दे दीजिए। Obviously, I'm not against Pastor Chris. मैं पास्टर क्रिस के खिलाफ नहीं हूँ। I respect him and I acknowledge his ministry. He's a great man. मैं उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी खिदमत को मानता हूँ। But once he preached that, let anybody bring anything in dreams and we will eat and have energy. और एक दफा उन्होंने कह दिया कि अगर बदरूहें जो है ख्वाब में कोई चीज लाती खाने की तो खाएं और उससे ताकत हासिल करें। No, नहीं, ये बात नहीं। it's not. I'm telling you, people are possessed just because of eating in the dreams. ख्वाब में भी खाकर जो है लोग पोजेस हो गए हैं। Don't forget, Jesus taught that in the night time, when the owner of the land was sleeping, the enemy came and they scattered the bad seed, wrong seed. और यीशु की बात याद कीजिए कि जब उन्होंने सिखाया कि मालिक जब सोया था तो उसके खेत में कड़वे दाने आकर बो गए। So what I'm telling you, जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, control your dreams. और वो ये है कि अपने ख्वाबों पर भी काबू डालिए। If you cannot control, अगर आप उनको काबू नहीं कर सकते you are spiritually weak person. तो फिर रूहानी तौर पर हम कमजोर शख्स हैं। Can I give you another example? क्या मैं एक और मिसाल आपको दे सकता हूँ? If you are a female or a male, अगर आप मर्द और खातून हैं and a demon comes और एक बदरू जो है वो आती है आपके पास to intimate with you physically, और जिस्मानी तौर पर आपसे ताल्लुक कायम करना चाहती है, now tell me, how can you control if you are a weaker person? और मुझे बताइए कि अगर आप कमजोर हैं तो किस तरह से आप इख्तियार पाएंगे, काबू करेंगे इस If वक्त? you are a female and that person have intimate fellowship with you, physical relation with you, sex with you in the dream, और अगर आप खातून हैं और ये जो आप ख्वाब में ऐसी चीज आपके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहती है, you are possessed. I'm telling you, you are gone. और अगर ऐसा होता जा रहा है तो समझे कि आप पोजेस हैं। And similarly with the men, if any lady, any demon comes and try to play with your body, with your organ, you are possessed. मर्दों की भी यही सूरत हाल है कि अगर ख्वाब में ऐसा होता है तो इसका मतलब आपका काबू नहीं है ऐसी सूरत हाल। So it's not just the eating things. सिर्फ खाने की चीजों की बात नहीं है। You should be mature and stronger enough to control in your dreams. आपको पुख्ता होना है और मजबूत होना है कि आप ख्वाबों में भी अपनी चीज को काबू कर रहे हैं। If they visit you, you should kick them out. कि अगर डीमंस विजिट करती हैं तो आप उनको किक कर सकें, भगा सकें। They have visited me many times. उन्होंने मुझे बहुत दफा विजिट किया है Tried to play with my body. और मेरे जिस्म से खेलने की कोशिश भी की है। I'm sorry, because of my spiritual strength, लेकिन अपनी रूहानी ताकत की वजह से it never happened. Every time they failed. वो हमेशा नाकाम हुए हैं और कभी भी कामयाब नहीं हुए। Control your dreams. मैं कह रहा हूँ अपने ख्वाबों पर भी कंट्रोल कीजिए। And only a spiritually strong person can control the dreams. और सिर्फ रूहानी तौर पर मजबूत शख्स ही ऐसा कर सकता है। Hello, are you here? Yes. Okay. I take pause. Read it. तब हज़रत ने बादशाह के हुजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ए बादशाह, अब तक जीता रह, अपने खादिमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। बादशाह ने कसदियों को जवाब दिया कि मैं तो यह हुक्म दे चुका हूँ कि अगर तुम ख्वाब ना बताओ और उसकी ताबीर ना करो तो मैं तो टुकड़े टुकड़े किए जाओ। So he is a clever king. ये चलाक बादशाह है। He said that I'm not going to share with you dreams. वो कह रहा है कि मैं आपको अपना ख्वाब भी नहीं बताऊंगा You will give me the interpretation. और मुझे उसकी ताबीर दो। And before you give me the interpretation, you give me the dream. और इससे पहले कि ताबीर बताते हुए मुझे ख्वाब भी बताओ। So if you will give me the exact dream, और अगर आपने ख्वाब सही सही बता दिया then I will know that you are giving me the exact interpretation. फिर मैं समझूंगा कि उसकी ताबीर भी आप सही कर रहे हैं। So how can I understand and I can guarantee that you are giving me the exact interpretation? मैं कैसे समझ सकता हूँ कि आप सही ताबीर दे रहे होगे? It's
by only one mean, if you share with me my own dream. और सिर्फ वो एक ही सबूत है कि अगर मुझे आप ख्वाब भी बताओ तो फिर, Then I will know that you people, if you can guess the dream, you are actually giving me the exact और interpretation. अगर आप मुझे ख्वाब भी सही बताओगे तो फिर ही मैं समझूंगा कि उसकी ताबीर भी सही बता रहे हैं। So I told you this king is a spiritual person, और मैंने आपको बताया कि ये शख्स जो है, बादशाह जो है, रूहानी शख्स है। not like us. When we are having dream, we are going everywhere, making WhatsApp calls, sharing in the WhatsApp group. Papa, I had this dream. ये हमारी तरह का नहीं है कि अगर ख्वाब देख लिया तो हर तरफ जो उसको फैला दिया व्हाट्सएप पर और पापा को भी कह दिया कि मैंने ख्वाब देखा And Papa, you tell me the interpretation. और कहा कि मुझे इसकी ताबीर फौरन बताइए। Even checking my intelligence level. और मेरी जहानत को आप चेक कर रहे होते हैं। Have you ever asked me, Papa, tell me my dream, then interpret for me? ये नहीं आपने कभी कहा कि ख्वाब भी पहले बताइए। You go blindly with every man. आप बिल्कुल अंधाधुंध हर शख्स के पास चले जाते हैं। Yet this king, the non-believer king, is a spiritual person better than you. लेकिन देखिए कि ये एक ईमानदार शख्स नहीं है ये बादशाह, लेकिन ये रूहानी है। He knew that these guys are going to give me wrong interpretation and they will claim that we have given you the right one. वो जानता है कि ये ताबीर अगर दे भी देंगे तो वो गलत हो सकती है, इसलिए वो ख्वाब भी पूछ रहा है। People of God, learn this from this king. इस बादशाह से सीखिए। No, pastor, no, give me the dream. ओके, No, please. किसी भी पास्टर को कहें इसे पहले पूछे कि मुझे ख्वाब भी बताइए। Then that pastor will resign from the interpretation department. तो पादरी यकीनन जो है वो ताबीर के जो उसका ऑफिस है उससे रिटायरमेंट ले लेगा, रिजाइन कर देगा। Hello, here or not here? इधर ही हैं आप। Please continue. और तुम्हारे घर मसला हो जाएंगे। You just know about he is disturbed in the sleep and disturbed in the soul. Now he is around disturbing around him everything. वो खुद तो जो है परेशान है ही, अपनी नींद में भी, अपनी रूह में भी, और वो दूसरों को भी कर रहे हैं। So don't get disturbed इसलिए आप परेशान ना हो because of any dream. किसी ख्वाब की वजह से। Otherwise you will call your mama, your papa, your brother, your sister, your pastor, everybody, and you will warn them that I am going to kill you people because I am disturbed. I will not give you rest. क्योंकि अगर जब आप ख्वाब से परेशान हैं तो आप अपने पापा मामा को, बहन भाइयों को फोन करेंगे या उन्हें कह रहे होंगे कि अगर इसकी ताबीर ना बताई तो मैं आपको मार दूंगा। Like this king, इसी बादशाह की तरह he is warning them, threatening them. I am going to destroy your homes. Your names will be vanished. उन्हें खबरदार कर रहा है कि मैं आपके घर तक गिरा दूंगा। Is it their problem that you had a dream? क्या ये उनका मसला है कि ख्वाब बादशाह को आ गया? No, actually he was paying them. दरअसल वो उनको तवज्जो दिलवाना चाह रहा था। No, he was paying them monetary. ओके, वो उनको रुपया पैसा जो है वो अदा कर रहे They थे were इसके the लिए। professionals, वो पेशा वराना लोग थे, ताबीर करने वाले, hired people. और उनको तनख्वाह पर रखा जाता था, खरीदा जाता था। Are you here? So that's why he was claiming इसीलिए इस तरह का वो दावा उनसे कर रहा था, तलब कर रहा था। that this is my duty to be a political person. King was saying that this is my duty to be a political person. और बादशाह कह रहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं एक सियासी शख्स हूँ। But this is your duty to be the spiritual persons. लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप रूहानी शख्स हों। You should have capability and ability to interpret for me. और इसलिए इस ख्वाब की ताबीर मेरे लिए करना आपकी जिम्मेदारी है। So if you are paying me monthly, और अगर आप महीना भर मुझे अदा कर रहे हैं then ask me the interpretations. Otherwise, keep these dreams with you. इसलिए फिर आप मुझे ताबीर के लिए कह सकते हैं, अगर बाद वरना नहीं कह सकते। Am I right or wrong? Okay, continue. लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करो। Not just the interpretation, but the dream as well. Okay, please. इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। They were trapped. They were trapped now. They were spiritual people, but now they are trapped. वो रूहानी लोग हैं लेकिन उनको फंसा लिया गया है। Okay. बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूँ कि तुम टालना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूँ। He knew his hired people, his employees, वो जानता था कि वो उसके काम करने वाले लोग हैं, उसके नौकर हैं, and his employees are not able enough. और वो इस काबिल नजर नहीं आ रहे उसे। He was forcing them that maybe they will do something spiritual rituals and they will get information. इसीलिए वो उन्हें खबरदार भी कर रहा है कि शायद ये कोई कोशिश करें रूहानी तौर पर और तबीर कर ही दे। Actually forcing them.
और वो उन पर जोर दे रहा है कि वो तबीर करें, or giving them the lalach. और उन्हें लालच भी दे रहा है। Okay. लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हुजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रुए ज़मीन पर ऐसा तो कोई भी नहीं जो बादशाह की बात बता सके, और ना कोई बादशाह या अमीर या हाकिम ऐसा हुआ है जिसने कभी ऐसा सवाल किसी फालगीर या नजूमी। Actually, they respectfully telling him that you are different, you are unique. No one didn't ever ask this one. वो बड़ी ताबेदारी के साथ उसे कह रहे हैं कि इस तरह का सवाल तो कभी भी किसी ने नहीं किया, You are a different king. और आप एक मुखलिफ ही बादशाह हैं दूसरों से। Respectfully, लेकिन वो बड़े एहतराम से ये बात कह रहे हैं, dishonoring him. एहतराम से उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। Okay. और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ No. They knew that some spirits should possess bodies. They knew. वो जानते थे कि किसी रूह को जिस्म पर काबिज होना चाहिए। Read it again. और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं। If they are not abiding in a man, अगर वो इंसान के अंदर नहीं रह रही रूह, that man cannot interpret and share with you the dream. तो फिर जो है कोई वो शख्स तबीर भी नहीं कर सकता, ख्वाब भी नहीं बता सकता। Please continue. बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता, इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ, और उसने हुक्म किया कि बाबुल के तमाम हकीमों को हलाक करें। तो ये हुक्म जा बजा पहुंचा कि हकीम कत्ल किए जाएं। So please listen me. If you are representing in front of any authority, आप किसी हुक्मरान के सामने अगर किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, actually you are representing your whole generation, your whole tribe. तो आप अपनी सारी नस्ल, सारे कबीले की रहनुमाई कर रहे हैं। They failed in telling the dream, वो ख्वाब की ताबीर या ख्वाब बताने में नाकाम होते हैं, but king released a decree to kill every other who was even not present. तो बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि सबको मार दिया जाए जो यहाँ मौजूद भी नहीं है। So you are a representative. आप नुमाइंदा होते हैं अपने कबीला के, अपने नस्ल के। Whenever you are talking with me जब आप मुझसे बात कर रहे होते हैं as a head of the family, बतौर सरबरा खानदान के, actually you are coming with your full family. तो आप अपने पूरे खानदान के साथ ही आए होते हैं। It's not about me. Even when the YouTube listeners, if you go to any man of God, सबके लिए ये बात कि जब भी आप किसी मर्द खुदा के पास जाते हैं behave well. तो फिर आपको अच्छा जो है ख्याल रखना है, अच्छा बर्ताव करना है। Because if you will mistakenly dishonor man of God, क्योंकि अगर गलती से आपने मर्द खुदा की कोई ऐसी बात कर दी जो कि बेइज्जती की है, your whole generation will suffer. तो आपकी सारी नस्ल जो है वो मुश्किल में से गुजरेगी। Are you listening? Yes. Are you listening? Yes. It's just the earthly king. ये देखें, ये सिर्फ एक ज़मीनी बादशाह है, And if you dishonor the kingly hierarchical structure, the king of kings and the kings down there, और यहाँ पर सारे ढांचे को अगर आप खराब करते हैं, the ambassador of the kingdom of God, यानी जो खुदा की बादशाहत का एक नुमाइंदा यहाँ पे है, so do you expect that king will spare your life and your family? तो क्या आप तवक्को करते हैं कि जो बादशाह है वो खानदान को ही आपको छोड़ देगा? So men of God, especially those who are called, anointed, chosen, proven, मर्द खुदा जो खास तौर पर मसाशुदा हैं, चुने गए हैं और साबित शुदा हैं, handle them carefully. उनके साथ अच्छे तरीके से, They are the representative, the ambassadors. वो नुमाइंदा हैं, वो सफीर हैं खुदा की ज़मीन पर। You do a mistake, अगर आपने गलती कर दी your generation will suffer. और आपकी नस्ल जो है फिर उसको गुजरना पड़ेगा। Continue. तब दानियेल और उसके रफीकों को भी ढूंढने लगे। You think about Daniel and the friends are not here. They were not invited to interpret and tell the dream. दानियल और उसके दोस्तों को यहाँ नहीं बुलाया गया ख्वाब की ताबीर के लिए। Still the decree is saying that kill them as well. फरमान में उनके लिए भी लिखा है कि उन्हें भी मार दें। They started searching for them. और उन्होंने उनकी तलाश करना शुरू कर दी। It's mean might be king is not aware about the abilities of these friends.
हो सकता है कि बादशाह जो है दानियल और उसके दोस्तों की काबिलियत यानी ख्वाब की ताबीर की ना जानता हो, but that they were also the spiritual people. कि वो रूहानी लोग हैं, ये वो ना जानता हो। But the soldiers, the generals of the army, they knew that they are spiritual as well. लेकिन उसके जो फौज के सिपाही हैं और जो जनरल्स हैं वो जानते हैं। So because of their mistakes, rest of the people are about to suffer. The people, those who were invited to share the dream, tell the dream. यानी ये जो लोग बादशाह के सामने जमा हैं ख्वाब की ताबीर के लिए, इनकी गलती की वजह से दूसरे भी सजा पाएंगे। Okay, now the story comes to the Daniel. Okay, continue. तब दानियेल ने बादशाह के जलूदारों के सरदार अय्यूब को, जो बाबुल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था, हिरदमंदी और अकल से जवाब दिया। Now the wisdom is activate. अब हिकमत जो है उसका अजरा हुआ है, वो काम करना शुरू हुई है। He spoke with wisdom वो हिकमत से बोला है। to the army general. आर्मी का जो जनरल उसके सामने खड़ा है, He said, "You are here to kill us उसने कहा कि तुम यहाँ आए हो हमें मारने के लिए, for a mistake we have not done. ऐसी गलती जो कि हमने की भी नहीं, Give us time and access to the king." इसलिए हमें वक्त लेकर दो बादशाह तक पहुँचने के लिए। Please continue. उसने बादशाह के जलूदार नौ के सरदार अय्यूब से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया। तब अय्यूब ने दानियेल से इसकी हकीकत कही, और दानियेल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं So, बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूं। In your anger, you can kill your helper. गुस्से में आप अपने मददगारों को भी मार सकते हैं। The interpretation and the dream was about to come from this person. ख्वाब और उसकी तबीर इसी शख्स से आनी थी, यानी दानियल से, And the decree was even affecting that person. और फरमान इस शख्स को भी, दानियल को भी मुतासर कर रहा है। So don't take decisions in anger, इसलिए गुस्से में फैसले ना लीजिए, through your emotions. जज्बात से फैसले ना लीजिए। You can kill your helpers. इससे आप अपने मददगार को भी मार सकते हैं। Hey, are you here listening? Yes. Listening? Yes. Please behave as a king. बतौर बादशाह जो है अपने आप को पेश कीजिए। We will not give you these strepsils. I know you are cuffing me. Okay. तब दानियेल ने अपने घर जाकर हननिया So Daniel asked for a time. दानियल ने यहाँ वक्त मांगा है। Is it here? Please read it again. और दानियेल ने अंदर जाकर बादशाह से अर्ज की कि मुझे मोहलत मिले तो मैं बादशाह के हुजूर ताबीर बयान करूंगा। Give time. Give time. उसने मोहलत की बात की है, वक्त मांगा है। Even give time to God as well. खुदा को भी टाइम दीजिए, मोहलत दीजिए। Take time and sit at the feet of Jesus Christ. इंतजार कीजिए, यीशु के कदमों में बैठिए। Don't just hurry up and jump into every situation. जल्दी ना कीजिए और हर सूरत हाल में छलांग ना लगा लीजिए। तब दानियेल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाएल और अजरिया अपने रफीकों को इतला दी। So he informed them that the decree is against you as well. उसने अपने तीनों दोस्तों को बताया इस हुक्म के बारे में And the situation. और सारी सूरत हाल के बारे में। Okay. ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। So he engaged his prayer team. अब उसने अपनी इस दुआया टीम को इसमें मिला लिया है, इस सारी सूरत हाल। When you are in a situation, जब आप ऐसी सूरत हाल में हो, if your life is on stake, जब आपकी जिंदगी खतरे में हो, you are sick, आप बीमार हो, you are trapped, आप फंस गए हो, go and sit with the fellowship prayer team. जाइए और अपनी जो दुआया टीम है उसको एंगेज कीजिए, उसके साथ बैठिए। Okay. कि दानियेल और उसके रफीक बाबुल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। Ah. फिर रात को ख्वाब में दानियेल पर वो राज खुल गया। He took time from king उसने बादशाह से मोहलत ली and prayed. और फिर दुआ की Prayed in agreement. और रजामंदी के साथ दुआ की अपने दोस्तों के। And God is always with the agreement. और खुदा हमेशा रजामंद लोगों के साथ होता है। He revealed. और फिर उसने राज खोल दिया। Continue. और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। No. Just consider. He got the revelation. देखिए कि उसे जो है राज तो मिल गया। King never shared his dream with him. बादशाह ने अपना ख्वाब इसको अभी तक नहीं बताया। How come is it possible that he is blessing God without even knowing the dream? कैसे How he knew that he had the exact dream the king had?
कैसे दानियल जान सकता है कि ये जो ख्वाब खुदा ने उसे बता दिया यही बादशाह को आया है और वो खुदा को मुबारक भी कह रहा है? Even king didn't share, और बादशाह ने तो अपना ख्वाब उससे नहीं बांटा, but he started blessing God. लेकिन उसने खुदा को मुबारक कहना शुरू कर दिया। He was so sure about his God and about the revelation he got. वो अपने खुदा के बारे में और जो उसको ख्वाब दिया गया उसके बारे में इतना यकीनी था कि उसने खुदा को मुबारक कहना शुरू कर He दिया। did not visit king and ask the dream and then bless God. When he had the revelation, he started blessing God. वो ख्वाब खुदा से लेने के बाद बादशाह के पास अभी नहीं गया, उससे पहले उसने खुदा को मुबारक कहा है। People of God, it's the pattern of my own life. और यही तरीकाकार मेरी जिंदगी का भी है। If I am having a revelation, अगर मुझे रोया मिलती है, any revelation of the word of God, खुदा के कलाम से मुतल्लिक कोई भी रोया मिलती है, I thank God. तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। This way you allow God to give you more revelations. इस तरह से आप खुदा को इजाजत देते हैं कि वो और भी आपसे बांटे। Hello? Whether you are confirmed or you are not confirmed, but you know in your spirit that God has spoken with me. आप रूह में जान जाएं कि ये खुदा ने ही मुझे बोला है, किसी और अथॉरिटी के बगैर ही। You should be having so sensitive connections with God. You should have so sensitive connection with God आपके खुदा के साथ इतने हसास ताल्लुकात होने चाहिए that the moment you receive any revelation, कि जिस लम्हे भी कोई रोया आपको मिलती है, कोई मुकाशफा मिलता है, you should know that this is the right revelation. आपको पता होना चाहिए कि यही सही मुकाशफा है You should start thanking God. और आपको खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर देना चाहिए। Daniel started blessing God और यहाँ पे दानियल ने खुदा को मुबारक कहना शुरू कर दिया, without confirming from the king. बादशाह के पास जाए बगैर ही। He knew my life is spared, people of God. वो जानता था कि उसकी जिंदगी जो है वो बच गई है, My friends are spared now. मेरे दोस्त भी बच गए हैं, God has revealed. और क्योंकि खुदा ने राज को खोल दिया है। If you are a friend of a man of God, अगर आप बंदे खुदा के दोस्त हैं, your life will be spared. आपकी जिंदगी बचा ली जाएगी। I'm telling you. ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। If you are connected with a man of God, अगर आप किसी मर्द खुदा के साथ ताल्लुक में हैं, your life is going to be spared. आपकी जिंदगी जो है वो बढ़ती जाएगी। Whether you talk about Daniel, आप दानियल की बात कर लें, you talk about Paul. आप पौलुस रसूल की बात कर लें, Angel appeared and said, Paul, because of your presence in this ship, वहाँ पे फरिश्ता आया और उन्होंने कहा कि पौलुस तेरी मौजूदगी की वजह से in this ship nobody is going to be इस destroyed. जहाज में अब कोई भी तबाह नहीं होगा, You are present. क्योंकि तू इसमें मौजूद है। Your salt is actually giving them taste. आपका जो नमक है वो उनको जायका दे रहा है, Your light is actually enlightening them. आपकी रोशनी उन पर चमक रही They है, cannot be the part of darkness. इसलिए वो तरीकी का हिस्सा नहीं हो सकता। Hallelujah, people of God. Hallelujah. Relationship with the man of God. यानी मर्द खुदा के साथ रिश्ता, God did not speak with the friends. खुदा उसके दोस्तों के साथ नहीं बोला, Just spoke with Daniel. दानियल के साथ ही बोला है, And it's enough. और यही काफी है। What? Maybe you are questioning God. God answer me. God speak with me. God speak with me. Yet your God is speaking with your pastor. हो सकता है खुदा से सवाल करते रहो, खुदा मेरे से बात कर, लेकिन वही बात आपके पास्टर से कर दी हो खुदा, That's enough. और यही काफी है, That's enough. और ये काफी है। We thank God. हम खुदा का शुक्र करते हैं। Please continue. दानियेल ने कहा, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो, Hallelujah. क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। Praise God. वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, Hmm. वही बादशाहों को मौजूल और कायम करता है, Hmm. वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश So his thanksgiving prayer is actually giving the you just imagine about the statue. And his thanksgiving prayer is comprehensive about that statue. The kingdoms are going to be changed. और उसकी शुक्रगुजारी की दुआ देखिए कि कितनी वो काबिल कदर है, कितनी बामानी है। So actually- और उस मुजस्समा के बारे में, In his prayer, you can discern that he had that same dream. और आप देख सकते हैं कि वो उसको ख्वाब जो है वो यहाँ बता दिया गया। Okay. वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है। Amen. Let us close. I feel the anointing now. Let us tap into this mysterious grace मैं खास मसा को देखता हूँ, उसमें हम बढ़ते हैं आगे to dream the dreams of other people. कि हम दूसरे लोगों के ख्वाब को वो दे सकें In the name of Jesus. यीशु के नाम में। May you be activated और खुदा करे कि आप इसमें आगे चल पड़े, to share the dreams of the people. कि आप लोगों के ख्वाब जो है उनको बता सकें। When you start ministering to them, जब आप उनको मिनिस्ट्री करना शुरू करते हो, may your eyes be open to see the dreams they have. आपकी आंखें खुल जाएं कि आप उनके ख्वाबों को जान सकें। May this oil rest upon your eyes and your head in the name of Jesus Christ. और ये मसा का तेल आपकी आंखों पर, आपके
आपके सर पर आ जाए In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में, In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में। May this church grow in this stature. और खुदा करे ये कलीसिया इस सिलसिला में बढ़ती चली May जाए, my generation flow in this type of anointing. मेरी नस्ल इस मसा में आगे बढ़ती जाए, Telling people their dreams लोगों को उनके ख्वाब बता रही हो and shocking them. और उनको हैरान कर रही हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Continue. और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है और नूर उसी के साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और तेरी सिताइश करता हूँ, ऐ मेरे बाप दादा के खुदा, जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी, और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर किया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर किया है। बस दानिएल अय्यूब के पास गया, जो बादशाह की तरफ से बाबुल के हकीमों के कत्ल पर मुकर्रर हुआ था, और उससे यूं कहा कि बाबुल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हुजूर में ले चल। Not just his friends are saved, सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बच गए, but all the spiritualists. लेकिन सारे ये रूहानी लोग जो जमा थे ये भी बच गए, All of them, they were saved. सारे बच गए Because of your presence in this city. इस शहर में दानियल की मौजूदगी की वजह से, No. Because of your presence in this city. इस शहर में आपकी मौजूदगी की वजह से This city should be spared. ये शहर जो है वो बचा लिया जाए। Hallelujah. This town, Yonabad, shall be spared. ये कस्बा, ये टाउन योहानाबाद बचा लिया जाए, Even the sinners. गुनाहगार भी बचा लिए जाए। Hallelujah. Hallelujah. God had to remove Lot. God had to remove people, Noah, to kill people. खुदा को इब्राहिम को हटाना पड़ा, उसकी जगह से लूत को लेके जाना पड़ा, और इसी तरह नूह को लेके जाना पड़ा लोगों को बचाने के लिए, Not to save, but to kill people. लोगों को मारने के लिए। Until and unless you are present in an environment, जब तक आप एक खास माहौल में टिके हुए, God cannot kill around you. खुदा आपके इर्द गिर्द लोगों को मार नहीं सकता। We stop this judgment हम इस अदालत को रोकेंगे through any king. Through any king. किसी भी बादशाह के जरिए जो अदालत होने वाली। Hallelujah. We are the church. हम कलीसिया हैं, We are the authoritative people. हमारे पास इख्तियार है, We are the wise and powerful people. हम हिकमत से भरे हुए और ताकत से भरे हुए लोग हैं। मुझे बादशाह के हुजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बता दूंगा। Ah. तब अय्यूब दानिएल को शताबी से बादशाह के हुजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। मैंने गज़ल याद आउंडी गाई सी उन्हें मेहदी हसन, ये खजाने मुमकिन है तुझे खराबों में मिले हैं। थैंक यू। Sometimes you consider people trash. बाज़ औक़ात आप लोगों को कूड़ा करकट समझ रहे होते। He said that मैनू गुलामां दे विचों असीरां दे विचों एक लब्बे। He is not your paid servant. He is not your hired servant. उसने कहा कि आपका वो यानी खरीदा हुआ शख्स नहीं है, सैलरी अदा किया हुआ शख्स नहीं है, लेकिन असीरों में से मुझे एक मिला है, From the Jews. और वो यहूदियों में से। I pray people should pick you मेरी दुआ है कि लोग जो हैं वो आपको देख रहे हैं, उठा रहे हो, and should give this type of statement that I have found a man, और इस तरह का बयान दे रहे हो कि मुझे एक शख्स मिल गया है, a daughter एक बेटी मिल गई है who can solve this every problem. जो इस सारे मसले को हल कर सकती है, कर सकता In है। Jesus' name. बादशाह ने दानिएल से, जिसका लक़ब बिल्तशज़्ज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानिएल ने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा He करता है। never knew about this God. He preached God in the king's palace. उसने खुदा की मुनादी की बादशाह के महल में। He said that you only knew these demons, these witchcraft doctors, उसने कहा कि आप तो सिर्फ इन जादूगरों को जानते हो, astrologists. इन फालगिरों को जानते हो, You don't know there is a God. आप नहीं जानते कि आसमान पर एक खुदा है। My people, you are going to stand in the courts of the kings of this nation. आप भी अदालतों में खड़े होने जा I रहे हैं, declare under the anointing, और मैं ऐसे मसीह का ऐलान करता हूँ, you will stand in the courts of the senators, of the presidents, of the prime ministers, आप सदर की सेनेटर के सामने खड़े होंगे and you will tell them that there is a God, और आप बता रहे होंगे कि एक खुदा है, our God, the God of our forefathers. हमारा खुदा, हमारे बाप दादा का खुदा।
If they don't know, अगर वो नहीं जानते, they will know through you, वो आपके जरिया से जानेंगे, through your gifting, आपके इनाम के जरिया से, आपके टैलेंट के जरिया through से, the calling upon your lives. आपके बुलावे के जरिया से। Your gifts and your talents, your anointing will bring you up from the slavery. आपका टैलेंट, आपका मसा जो है गुलामी से ले आएगा बाहर, In the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। You are going to be promoted. I see in the spirit somebody is promoted in his industry. मैं रूहानी आलम में देखता हूँ कि आप में से कुछ जो है वो प्रमोट हो रहे हैं, Just because of the gifts in that child, in that son, in that young person. उस नौजवान की जिंदगी में जो टैलेंट है, जो गिफ्ट्स हैं। In this same month, इसी महीने में I see you being promoted, मैं देखता हूँ कि आप तरक्की पाते हो, and chief executive of that industry is going to invite you in his office. और उस इंडस्ट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो आपको दावत देगा, God is going to exalt you. और खुदा आपको सरफराज करने वाला है। I see you moving from very down floor and you are going up on the very highest floor. और मैं देखता हूँ कि आप बिल्कुल निचले फ्लोर से बहुत ऊपर तक जा रहे हो। This God, just because of you are listening this one, I'm seeing you promoted. सिर्फ खुदा की वजह से और इस कलाम के सुनने की वजह से आप तरक्की पा रहे हो, In Jesus' name, यीशु के नाम। we are going to testify it. और आप इसकी गवाही भी दोगे। Carry on. और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों को खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और ज़ई हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था। Now just imagine that statue I displayed. The head. He started from the head. Head is of gold. उस Okay. मुजस्मे को देखना शुरू कीजिए जो एलईडी पर हमने देखा था कि उसका सर जो है वो सोने का है, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी Now रानी you चांदी just think the chest area and the okay silver. Continue. उसकी टांगे लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। Mixture clay and iron. Okay. तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया Without any help. Okay. और उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा। On the heat is on the down floor. Okay. और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया। The और stone, तमाम जमीन में था। the stone became a mountain ये and पत्थर एक पहाड़ बन गया and extended in whole earth. और ये पूरी जमीन पर फैल गया। Now continue. वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के हुजूर बयान करता है। Now the dream is completed. ख्वाब मुकम्मल हुआ। Now king is ready. अब बादशाह तैयार है। He is assured that this man, if he can come up with the dream, he will come up with the interpretation. अब उसे इस बात का यकीन है कि अगर इस शख्स ने ख्वाब बता दिया है तो ये ताबीर भी बता देगा। So accurately from head to toe. कि इसने सर से पांव तक बिल्कुल सही सही बताया। Even he said that you kept watching that statue. यहाँ तक उसने कहा कि तू उस मुजस्मे को, मूरत को देखता रहा। He was so sure about the time involvement in the dream. और दानियल को यकीन था कि कितना वक्त लगा, इतना यकीन था उसे। So sharp prophet. इतना तेज नबी है ये। Okay, continue. ऐ बादशाह, तू शहंशाह है जिसको आसमान के No. Learn this wisdom, my sons and daughters. मेरे बेटे और बेटियों ये हिकमत सीखें यहाँ से। Listen, what Daniel is saying to this king. कि दानियल नबी से उस बादशाह से क्या कह रहा है? Even the king is not a godly king.
अगर ये बादशाह खुदा का बंदा नहीं है, even the king is the king who enslaved them and killed them and destroyed their city, destroyed their temple. और ये वो बादशाह है जिसने इन्हें असीर बनाया है और इनके लोगों को मारा है और उनकी हैकल को तबाह किया। I'm talking about the Babylon, not this king actually did it, but the whole system did it. मैं बाबिल के और उसके सारे सिस्टम की भी बात कर रहा हूँ। This exactly the king didn't destroy them, इस बादशाह ने तो उसको तबाह नहीं किया, but the system, the lineage of this king. और इसी बादशाह की लड़ी में से ये शख्स ने किया। Now his communication skills are involved. अब उसकी जो राब्ता करने की महारत है वो इन्वॉल्व हुई है, वो शामिल हुई। Few of my sons they should learn this ability. मेरे कुछ रूहानी बेटों को ये काबिलियत, ये महारत सीखनी है। You don't know how to talk with people. आप नहीं जानते कि लोगों से बात कैसे करनी है, You start fighting. आप उनसे लड़ना शुरू कर वाह, दें, इस तरह की बात शुरू कर दें। And you actually you are representing, I already told you represent a whole tribe. आप सारे कबीले की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। Now look at the communication, अब यहाँ पर देखिए कि किस तरह का राब्ता, किस तरह की बातचीत है। please. ए बादशाह, ऐ बादशाह, तू शहर ओए बादशाह ने कि मैं ड्रीम मैनू आ गया ही, मेरे ना पता रूहानी तू नहीं गा, देयर इज अ गॉड इन हेवन। ओ भाई इधर आ, तेन मैं दसना, नॉट लाइक दिस किंग, ओ किंग, ओके, तू शहंशाह है। you are actually a ruler, a king. Shahanshah mean king of, was he? Was he? No. Yet he is using the wisdom. He knew he is not king of kings. Can you stand in the presence of the president of this nation क्या इस कौम के, इस मुल्क के सदर के सामने आप खड़े हो सकते हैं and you say like this? और इस तरह बात कर सकते हैं? Huh? You will be so Christian in that time. उस वक्त में यानी जब आप खड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा मसीही बन जाएंगे You will try to raise yourself higher than the president. और आप खुद को सदर से भी ऊपर लेके जाना पसंद करेंगे। I remember a moment I would share with you people. मैं एक बात आपसे जो बयान करना चाहता My हूँ spiritual father, अपने रूहानी बाप की। he was sharing his secret. वो अपनी एक राज की बात जो है उसको बांट रहे थे, He बता said रहे that थे। nobody knows it, but let me tell you. He said that nobody knows it. It is a secret matter. Let me tell you. उन्होंने कहा कि एक बात कोई भी नहीं जानता, एक राज की बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। The president of the nation Zimbabwe जिम्बाब्वे का जो सदर है and the deputy president, they don't call it vice president, they call it deputy president. और उनका डेप्यूटी जो सदर है वो भी वहाँ पे था। Both came to see my spiritual father दोनों मेरे रूहानी बाप से मिलने के लिए आए in the place where we met our father. उस जगह पर जहाँ हम भी मिलने गए थे अपने रूहानी बाप से। That room is called, actually they call it board room. और उसको वो बोर्ड रूम भी कहते हैं। My father said that they were already there before me. और मेरे रूहानी बाप ने कहा कि ये दोनों शख्स मेरे आने से पहले उस जगह पर मौजूद थे। He said that it was supposed that I should have been there first, और समझा तो ये जाता था कि मुझे उनसे पहले वहां पर होना चाहिए, but they arrived first. लेकिन वो पहले उस जगह पर पहुंच गए। People of God, learn the protocols, आपको प्रोटोकॉल, तरीकाकार को सीखने की जरूरत है the respect, the honor manner. और एक दूसरे की इज्जत करने की सीखने की जरूरत है। He said that when I entered into the boardroom, his own boardroom, the boardroom where the president and the deputy was already sitting. सॉरी, My father, when he entered into the boardroom, जब रूहानी बाप जो है उस बोर्ड रूम में दाखिल हुए, he said that deputy president was sitting right beside the gate. तो उन्होंने कहा कि जो डेप्टी सदर था वो गेट के बिल्कुल करीब बैठा था। My father said that we are friends actually, और वो मेरे रूहानी बाप के दोस्त थे, but he said that I knelt down. लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनके सामने झुक गया। My father, मेरा रूहानी बाप, he said that I knelt down and I greeted और उन्होंने कहा कि मैंने झुक कर जो है उन्हें सलाम किया the deputy president of the nation. उस डेप्टी सदर को, अपनी कौम के, जिम्बाब्वे के। Actually, they came for the blessing, हालांकि वो बरकत लेने के लिए आए थे खुदा के खादिम के पास। the voice,
खुदा की आवाज के पास। But the man of God, my father, knelt down in the protocols. लेकिन ये मर्द खुदा मेरा रूहानी बाप जो है वो तरतीब के लिहाज से उनके सामने जो Even to the deputy president. यानी सदर के सामने, डिप्टी सदर के And सामने, he greeted, not he started greeting, he greeted first. और उसने उन्हें सलाम करना शुरू की। And he said that the next moment shocked me. और उन्होंने कहा कि अगला जो वाकया हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। He said that my friend, the deputy president, actually did not reply me. और उन्होंने कहा कि उसने मुझे कोई जवाब ना दिया, उससे डिप्टी सदर ने, जो कि उनका दोस्त भी था। He said that he just turned towards the president. His face turned towards the president. और डिप्टी सदर ने अपना चेहरा जो है, अपना रुख जो है वो सदर की तरफ किया। And with his eyes, he communicated with my spiritual father. और उन्होंने आंखों ही आंखों में वो एक इशारा दिया मेरे रूहानी बाप को That in this room there is another man important than me. कि इस कमरे में मेरे से ज्यादा एक अहम शख्स है। You should greet him first. पहले आपको उसे सलाम करना चाहिए। No. Maybe you have not learned this. My father entered and he knelt down and he greeted to the deputy president. यानी अब देखिए कि मेरे जो रूहानी बाप है वो दाखिल हुए और उन्होंने सलाम किया डिप्टी सदर को। Did you observe the protocol? आपने तरतीब को यहाँ पे देखना है। Now the game starts with the office of the president. और अब जो है आगे बात बढ़ती है सदर के दफ्तर की तरफ। The closest person of the president is also moving in the protocol. और सदर के करीब का शख्स भी इस तरतीब में शामिल नजर आता है हमें। He did not receive the greetings. He said that greetings should be transferred to the main person first. उसने सलाम को कबूल नहीं किया क्योंकि वो समझता था कि पहले सदर को सलाम की जाए। This is how you behave in the presence of the seniors. इस तरह से बड़ों के सामने आप अपना रवैया दिखाते हैं। When we both entered into the boardroom to see our father, जब हम उस कमरे में दाखिल हुए थे अपने रूहानी बाप से मिलने के लिए, ask her, we knelt down. पूछ लीजिए, हम भी झुक गए थे। I knelt down on my both knees. मैं अपने घुटनों के बल जो है वो झुक गया था। Why? Maybe you will consider that I worshipped him. हो सकता है आप में से कुछ समझे कि शायद हम ये उसकी तारीफ या प्रस्तुत कर रहे हैं। No, he knew that he is not worshipping me and we know that we were not worshipping him. हम भी जानते थे कि हम कोई ये प्रस्तुत के तौर पर, दुआ के तौर पर नहीं कर रहे, और वो भी जानते थे। But we know that God of heaven is residing in this body. लेकिन हम ये जानते थे कि खुदा का रूह जो है, उसकी हुजूरी जो है वो उस जिस्म में रहती है। And we knelt down before the God, not the person. हम उस शख्स के सामने नहीं झुके घुटनों के बल, बल्कि खुदा की हुजूरी के सामने झुके। And because of the humbling stature of our bodies, और चूंकि हमारे जिस्म जो है इनकी एक आजिज़ सूरत हाल है, it was in the honor of our spiritual father. और ये हमारे रूहानी बाप की इज्जत में हमने ऐसा किया। My sons and daughters and the people on YouTube learn the protocols. और सारे खुदा के लोगों इस तरतीब को सीखो। I like my son Suleiman, Johnny, मैं अपने रूहानी बेटे सुलेमान से बहुत खुश हूँ, and Asher as well. आशिर से भी खुश हूँ। When they meet me, when they talk to me, जब वो मुझे मिलते हैं या मुझसे बात करते हैं they have a curve in their body. They are bent. तो वो झुक जाते हैं, उनके जिस्म में एक झुकाव नजर आता है। Johnny is standing at a distance, specific distance. और जोनी जो है वो तो एक फासले पर जो है वो खड़ा रहता है, And he is always bowing. और वो झुका हुआ रहता है। Not on his knees, अपने घुटनों पर तो नहीं झुकता, but I know that there is a respect level. लेकिन उसके अदाब से लगता है खड़े होने से कि वो इज्जत कर रहा है। You should have protocols in your life. आपकी जिंदगी में इस तरह की तरतीब होनी चाहिए। I'm giving you not out of the word of God, I'm giving you from the word. ये मैं खुदा के कलाम से बाहर बात नहीं कर रहा, ये कलाम से ही बात कर रहा हूँ। I'm talking about the church decorum, yet he is in the secular field. मैं तो कलीसिया की तरतीब की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो इस वक्त एक दुनियादार तरतीब में। He said that my king, the king of kings, yet he is not. उसने कहा बादशाहों का बादशाह, हालांकि वो नहीं है। Can you carry on? ऐ बादशाह तू शहंशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही और तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। God gave you this much. कि खुदा ने ही ये सब कुछ तुझे दिया है, You destroyed our temple. और तुमने हमारी हैकल तबाह कर दी, You destroyed our city. आपने हमारा शहर तबाह कर दिया, You captivated us for years. आपने सालों से हमें असीर बना लिया, Yet you are a godly person. लेकिन फिर भी तू खुदा का बंदा है। And you, when pastor talks to you, you say, we are leaving church. और जब कभी पास्टर को ऐसी बात कर दे तो आप कहते हैं कि हम जी चर्च छोड़ने, We are going. हम जा रहे हैं। We have another brand.
Brand? Yeah, हमारे पास एक और ब्रांड मौजूद है, we can shop from that brand. हम वहां से जाकर शॉपिंग कर सकते They give us the discounted teachings. हैं, वो हमें रियायत भी देते हैं। My goodness, कैसी बात, that's the misery of the church. ये कलीसिया की खस्ता हाली है। Sometimes tears are flowing when I am sitting alone. I weep for the condition of the church. जब कभी मैं अकेला बैठता हूँ तो मैं कलीसिया की सूरत हाल पर आंसू बहाता हूँ। We were not taught. हमें नहीं सिखाया गया That tragic situation is just because of the lack of teachings. कि ये जो सूरत हाल है अलमनाक, ये तालीम की कमी की वजह से। If my father, my spiritual father, अगर मेरा रूहानी बाप would not, he wouldn't have shared his experience, the secret. No one experienced that when he was doing this to the president. और But he अगर वो shared. ये राज की बात ना बयान करते जो अभी हमने सीखी है, जब वो सदर से डिप्टी सदर से मिले हैं, Yeah, but he shared. लेकिन उन्होंने इसको बांटा And I shared with you. और मैंने आपको ये बात बताई है। You were not there when we were seeing our father. आप वहाँ नहीं थे जब मैं अपने रूहानी बाप से But I मिलने गया। shared with you the behave we did there. लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह बर्ताव किया वहाँ पर। People of God, खुदा के लोगों, are you here? बात सुन रहे हैं आप? If you want to grow अगर आप बढ़ना चाहते हैं and go और जाना चाहते हैं higher, बुलंदियों पर, learn this wisdom from Daniel. तो दानियल से ये हिकमत की बात सीखिए। Daniel was having upper hand now अब दानियल का हाथ जो है वो ऊपर था बादशाह, because of the dream, the revelation, the interpretation. ख्वाब की वजह से भी और उसकी ताबीर की वजह से भी। But still he is a humble man. लेकिन अभी भी वो आजी से ही पेश आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You come after casting out one demon and you stand in front of me. Ah, Papa. And I'm looking at you. I can just only laugh. आप एक बदरू को निकाल कर ऐसे अकड़ कर खड़े हो जाते हैं मेरे सामने कि पापा ये मैंने कर दिया है। I just only laugh. मैं सिर्फ हंस ही सकता हूँ। My God, my God, my God. Okay, please continue. और जहाँ कहीं बनी आदम सुकूनत करते हैं, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाला करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। Ah. वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे Please stop here. One more moment I remember of my father. अपने रूहानी बाप की एक और बात भी मुझे याद आ रही है। One of my spiritual brother, मेरा एक रूहानी भाई, actually he is the youngest, richest African man, not the Zimbabwean, but the African, in whole Africa, he is awarded as the youngest, richest person. सारे अफ्रीका में वो अमीर तरीन नौजवान शख्स है He is my spiritual brother, और वो मेरा रूहानी भाई है just 33 years old. और 33 साल का है वो अभी। He was the pastor of my spiritual father's church branch. वो मेरे रूहानी बाप के चर्च की एक ब्रांच का पादरी है, But now, in the last month, he became the member of Parliament Assembly. लेकिन वो लास्ट मंथ In the last month. और पिछले ही महीने जो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया And he visited with the wife and the Sunday service. और वो संडे सर्विस में आया अपनी बीवी के साथ And my father was preaching. और मेरा रूहानी बाप जो है वो कलाम की मुनादी कर रहा था। You know, my father, as the spiritual father of that guy, and as the head of that church even, मेरा बाप जो कि कलीसिया का सरबराह है और उसका भी रूहानी बाप है उस शख्स का। yet called him honorable. और फिर भी उन्होंने उसके लिए बाइज्जत ऑनरेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया। Whenever he was calling him, जब कभी वो उसे बुला रहे होते हैं he was saying honorable. वो उसके लिए लफ्ज ऑनरेबल बाइज्जत इस्तेमाल करते हैं, It's the protocol, क्योंकि ये एक तरतीब नजर आती the है decorum. और ये एक तरीकाकार है। He knew that I know honorable is here among us. वो जानता है कि एक बाइज्जत शख्स हमारे दरमियान मौजूद है। We spoke that then when the cameras hit that face, he said that I know the honorable is here now. और जब कैमरा उस शख्स के चेहरे पर पड़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि एक बाइज्जत शख्स यहाँ मौजूद है, He is the spiritual son. हालांकि वो उनके रूहानी बेटे हैं। I sent him the WhatsApp message to the honorable. I also mentioned him honorable. मैंने भी उन्हें व्हाट्सएप मैसेज पर यही लफ्ज कहे हैं कि वो ऑनरेबल हैं। I congratulated him मैंने उन्हें मुबारकबाद भी दी and he said that this is just because of the grace of my father. और उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ मेरे रूहानी बाप के फजल या उनकी बदौलत ही है। People of God, protocols. मैं आपको तरतीब की बात सिखा रहा हूँ। My father honored him मेरे बाप ने उसकी इज्जत की and he is honoring, in his absence, he is honoring him. और उनकी गैर मौजूदगी में वो उनकी इज्जत कर रहे हैं। It does not matter when you, even if you, I know, I'm telling you for the first time, from my church congregation, there will be the MPs and MNAs. I'm telling you. मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमारी कलीसिया में आने वाले दिनों में MPs और MNAs होंगे। You can, it is recorded, you can note it down.
और ये रिकॉर्ड और ये बात आप लिख सकते हैं इसको, You can record it. रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। Whatever the medium you can use. कोई भी मीडियम आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको बाकी रखने के लिए बात को। But by that time, यानी उस वक्त, आने वाले वक्त, all of you should learn the protocols. कि उस वक्त जब आप MPMNs बन जाए तो इस तरतीब को याद रखिए। So whenever I will be honoring the MPA, the MNA in the church on the stage, कि जब मैं किसी MPMNA को स्टेज पर जो इज्जत देता हूँ, you will not start fighting with me. आपने मेरे साथ लड़ना शुरू नहीं कर देना That what happened to our spiritual father now? कि हमारे रूहानी बाप को अब क्या हो गया है। I know word of God better than you. You should consider it. मैं खुदा के कलाम को बेहतर जानता हूँ, आपको इस बात को समझना चाहिए। I know how to walk with God. मैं जानता हूँ कि खुदा के साथ कैसे चलना है। So if I will be honoring a wrong person, but अगर मैं गलत शख्स को इज्जत दे रहा हूँ तो as MPA or MNA, he will be the member of the church. लेकिन बतौर MPMNA वो चर्च का रुकन होगा, That person still be the honorable. वो शख्स जो है वो काबिल इज्जत होगा। Hello, is it digestible or not? क्या ये बात समझ आ रही, हजम हो रही है? He called that king who destroyed them. The system destroyed them, captivated them 70 years. उस बादशाह को इज्जत दे रहा है जिसने और उसके सिस्टम ने उनके लोगों को तबाह किया है और असीरी में ले गया। Telling him, hello, king of kings. और उस इज्जत से बादशाहों का बादशाह कह रहा है, My God has given you this power. और कह रहा है कि खुदा ने ये ताकत आपको बख्शी है। You should accept every government, I'm telling you. आपको हर तरह की हुकूमत को जो है कबूल करना होगा। I know many believers, those who speak against the governments. मैं ऐसे ईमानदारों को जानता हूँ बहुत सारे जो हुकूमत के खिलाफ बात करते They lack the wisdom, they lack the knowledge, they lack the revelation of God. हैं। उनके पास मुकाशफा की कमी है, इल्म की कमी है। They don't know how to behave. वो नहीं जानते कि किस तरह से ये इस बात में बर्ताव करना है। I don't consider them spiritual even. मैं तो उनको रूहानी भी नहीं करता, Whosoever they are. जो कोई भी वो है। If you can't respect the governments, अगर आप हुकूमतों की इज्जत नहीं कर सकते, the setups, जो भी ढांचा बना है हुकूमत का, whether they gave you the taxes, whether they killed you, whether they destroyed you, चाहे वो टैक्स लगाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, मारते हैं आपको, according to the word of God, you should honor them. लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक आपको उनकी इज्जत करना है। So, can you remember the fight between two men of God previously? पिछले दिनों में दो मर्द खुदा जो थे उनकी यानी लड़ाई जो आप जानते हैं, Only the lack of wisdom was displayed. सिर्फ हिकमत की कमी जो है उसका मुजाहरा किया गया, Yet they are men of God. फिर भी वो मर्द खुदा हैं। They should, may God give them wisdom. They should read this book. और खुदा उनको जो हिकमत दे ताकि इस कलाम को अच्छी तरह पढ़ सके। Hello. And I know my church people, those who are sitting here, even they don't have the big ministries, they are more wiser than them. और मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ चर्च के लोग हैं, उनकी बड़ी खिदमती मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा अकल रखते हैं। From this point onward, अब से आगे को, because the wisdom is being shared with you. क्योंकि आपके साथ हिकमत बांटी जा रही है। Hallelujah. We are not blowing in the air. हम हवा में बातें नहीं कर रहे, We are not. हम ऐसी बात नहीं कर रहे, We are laying foundations हम बुनियादें डाल रहे हैं with the word of God. खुदा के कलाम के जरिए से, Because we know the word of God. क्योंकि हम खुदा के कलाम को जानते हैं, And they do not know. वो नहीं जानते। Ah, can you finish it? और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा हो। Now the respect interpretation is going. यहाँ पर तबीर में देखें कि इज्जत का आंसर जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। Okay. जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद He एक said that this gold head is you. यानी सोने के जो सर है ये आप हो, बादशाह को वो कह रहे हैं। And he said that you are going. और वो ये भी कह रहा है कि तू खत्म होने वाला है, जाने वाला है, And the next kingdom is coming. और अगली बादशाहत आने वाली है। And you know the next kingdom which was? और आप जानते हैं कि अगली बादशाहत कौन सी आई? Yeah. Medo, Persian kingdom. मादी फारसी। So two, you see two arms यहाँ पर आप देखते हैं कि दो बाजू दिखाए गए in unity. और वो इत्तेफाक में है आपस में। You see? Not more valuable than the gold. वो सोने से ज्यादा कीमती नहीं है, So value is decreasing, कदर कीमत कम होती जा रही है, but the kingdom is going. लेकिन बादशाह चल रही है। Continue. जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे So the silver is
silver is representing the low value. He's saying that kingdom is smaller. यहाँ पर देखते हैं कि बादशाह अगली जो छोटी है और वो चांदी कम कीमत को पेश कर रही है। They will be in unity, गो के वो इत्तेफाक में होंगे आपस में, but not valuable than you. लेकिन तुझसे ज्यादा वो काबिल कदर नहीं You होगा। are gold, they will be the silver. तुम सोना हो लेकिन वो चांदी होंगे। Okay, और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की, but they will be gone, and the bronze is coming. चांदी की सल्तनत जाती रहेगी और उसकी जगह तांबे की आ जाएगी। Now the value is decreasing again. अब देखें कि कदर में और कमी हो गई है। Go. जो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। Whole earth. It's not about the limitation now. It will take whole earth. Okay. और चौथी सल्तनत लोहे की मानित मजबूत होगी, Hmm. और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है, Now the iron is the cheapest one, अब देखते हैं कि लोहा सबसे सस्ता यहाँ नजर आ रहा है, but it can break लेकिन ये तोड़ सकता है। gold, सोने को तोड़ सकता silver, है, चांदी को भी तोड़ सकता है, bronze. तांबे को भी तोड़ सकता So it does not mean your value is less, है। यानी इस बात से लेना देना नहीं कि आपकी कदर कम है, but you can destroy every valuable thing. लेकिन आप काबिल कदर चीजों को तोड़ सकते हैं। Don't undermine yourself, I'm telling you. अपने आप को जो है वो कम ना समझिए। If your value is not according to the gold to the silver, yet you are valuable and more powerful than the gold and the silver and the bronze. अगर से आपकी कदर सोने और चांदी जैसी नहीं, लेकिन आप मजबूत हैं, आप उनसे बढ़कर हैं। Please continue. और सब चीजों पर गालिब आता है। हाँ, जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता है। That's why Bible says iron sharpens iron, not gold sharpens gold. Yes. It is the reason. Iron has the ability to sharpen another metals. लोहे के अंदर ये काबिलियत है, दूसरी धातुओं को तेज कर सकती है, Not other metals can sharpen iron. लेकिन दूसरी धातें लोहे को तेज नहीं कर They सकती, will be destroyed. वो तबाह हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। Please continue. जिस तरह लोहा सब चीजों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है, उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में Now फर्क होगा। we are in this age. Upper there, it was the history. ऊपर वाला जितना भी हिस्सा पड़ा वो एक तारीखी हिस्सा है, तारीख बन Now गया। we are at feet now. हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वाला हिस्सा है कदमों वाला, It's the feet age और इसको हम फीट एज भी कह सकते हैं, कदमों का दौर, of the governments, हुकूमतों का of the इख्तिताम, kingdoms. बादशाह सल्तनतों का इख्तिताम। Now if you look at your feet, अगर आप अपने पाँव की तरफ देखें, how many toes you have? आप देखें कि कितने टोज हैं, आपके अंगूठे हैं। If you are normal person, अगर आप नॉर्मल हैं तो you have 10 toes. आपके 10 उंगलियां हैं, Both of the feet carry 5 each. दोनों पाँव की मिलाकर 10 उंगलियां। So these 10 kings are going to rise. I will discuss in next lectures. अगले लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि ये 10 बादशाहों की बात हो रही है। Some of the scholars say that they are the European United Nations, और कुछ स्कॉलर दानिश्वर ये कहते हैं कि ये 10 जो हैं वो यूरोपियन सल्तनतें हैं, but some now they can say that this is the Islamic country union. लेकिन कुछ कहते हैं कि ये इस्लामिक यूनियन की तरफ इशारा है, The 10 Islamic nations will rise up, कि 10 इस्लामी रियासतें उठ खड़ी होंगी, and from which we see the fight within the horns, within the toes. We will discuss later on और इसको हम बाद में सीखेंगे in other books. और किताबों में और लेक्चर्स में। I will define 10 horns, 10 kings, 10 heads, 10 toes. I will define them. और इन सब की वजाहत करूंगा मैं, यानी 10 उंगलियों की, 10 सरों की, सबकी 10 सिंगों की 10 kings, और 10 बादशाहों की, and then the fight between them. और इनके दरमियान जो लड़ाई होगी उसकी भी। Do you read that they are made of clay and iron? कि हमने पढ़ा कि ये मिट्टी और लोहे से बने हुए हैं। So the clay and iron, they cannot stay together. लोहा और मिट्टी इकट्ठे कभी भी नहीं रह पाते। You will see them try to mix with each other, but they will be fighting with each other. आप देखेंगे कि वो इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपस में लड़ रहे होंगे। Compromise will be there, but it will not longer anymore. ये एक समझौता होगा जो लंबा नहीं चलेगा। So Antichrist will rise up from these 10 toes. और इन 10 में से मुखालिफ मसीह उठ खड़ा होगा। Now you carry on. सो उस सल्तनत में तो फर्का होगा, मगर जैसा कि तूने देखा कि उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। हाँ. और चूंकि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ सही होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, वो बनी आदम से अमिख्ता होंगे,
लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से नो नो नो, नहीं खाता। रीड इट। वो बनी आदम से क्या होंगे? दे विल बी द सीड्स ऑफ मैन, सीमन ऑफ मैन। वो बनी आदम से होंगे, उसके सीमन से होंगे। इट मीन्स दे विल बी द ह्यूमन, तो इसका will be मतलब the है कि earthly people, वो the जमीनी kings. लोग होंगे, इंसान होंगे, not the spiritual entities, कोई यानी रूहानी लोग नहीं होंगे। the human people. Okay. लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, वैसे ही वो भी बाहम मेल ना खाएंगे। Mhm. और उन बादशाहों का अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा। In those days, उन दिनों में, in the days of those kings, उन बादशाहों के दिनों में, when they will be united and there will be the Antichrist, the head among them, कि जब वो इकट्ठे होंगे और उनके दरमियानी मुखालिफ मसीह भी होगा, then what will happen? फिर क्या होगा? आसमान का खुदा एक सल्तनत The God of heaven will build another kingdom. तो खुदा, आसमान का खुदा एक और सल्तनत कायम करेगा। He is prophesying about 1,000-year kingdom. यहाँ पर वो 1000 साला बादशाहत की तरफ इशारा कर। Continue and finish it. जो ताअबद नेस्त ना होगी। Never. It will be everlasting. ये बादशाहत हमेशा के लिए होगी। और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाला ना की जाएगी, Ah, बल्कि वो इन तमाम मुमलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और Yes, sir. वही अब तक कायम रहेगी। he is coming, I'm telling you. He is coming. वो आ रहा है, And he will destroy every king, वो हर सल्तनत का खात्मा करेगा, every kingdom. हर सल्तनत का, We will be the authorities. और हम इख्तियार रखेंगे। Is it finished? Please complete. जैसा तूने देखा कि वो पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा, हाथ लगाए बगैर means no involvement of people, no interest, no likeness, no dislikeness. यानी हाथ ना लगाने का मतलब है कि कोई दूसरा शख्स इसमें शामिल नहीं No है, involvement, whether you like it or not. He आप is coming. पसंद करें या ना करें, He is coming. वो आ रहा है। He is not unstoppable now. अब वो रुकने वाला नहीं है। Please finish it. पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काटा गया और उसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े किया। All the systems. Do you remember this verse? बड़ा शहर बाबल गिर गया. He will destroy from the top the statue. That statue hit on the थले. पढ़ना जरा. टुकड़े टुकड़े किया। वो हिट कहाँ किया था? अभी हमने पीछे पढ़ा था. On the feet. क्योंकि उस जमाने ਦੇ ਵਿੱਚ feet ही ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ. Kings ਦੀ kingdoms ਹੋਏਗੀ 10. So he will hit on that. ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ the whole statue will collapse. The whole systems will collapse. So the बड़ा शहर बाबल, the system, the Babylonian system is still here on this earth because it was because of a spirit. ये सिस्टम जो है बाबल का, ये तबाह कर दिया जाएगा जो, क्योंकि ये शैतान की तरफ से। I didn't say shaitan. Do you have a friendship with him? You are always blaming him. Please finish it. क्या टुकड़े टुकड़े किया। हाँ। खुदा ताला ने बादशाह को वो कुछ दिखाया जो आगे को होने वाला है, और ये काब यकीनी है और इसकी ताबीर यकीनी। Are you happy, people? So I just tried to teach you. मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Much more I could teach from this passage. जितना भी मैं सिखा सकता हूँ उतनी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। Obviously, I have not taught you the fullness of the revelation. बज़ाहिर मैंने सब कुछ तो नहीं सिखा पाया इसके मुकाशफा को। I cannot claim that the whole revelation is given to me. मैं दावा नहीं कर सकता कि सारा ही मुकाशफा आपको दे दिया गया है। Go and read. आप जाएं और खुद भी पढ़ें। Maybe God will give you further information. खुदा आपको हो सकता है इससे आगे भी मालूमात मुकाशफात दे। So we are still in this book. हम अभी भी इसी किताब में रहेंगे And we have to study every other chapter और बाकी सारे अबवाब भी हम मुतालिया करेंगे related to the end times. जो कि आखिरी अयाम से मुतल्लक हैं। Today I just shared with you the statue structure आज मैंने इस मुजस्मे की सारी साख्त ढांचे की बात की आपसे, and I showed you the what should I say, the picture. और मैंने इसकी तस्वीर आपको दिखाई है। If you remember the statue picture, अगर आपको याद हो तस्वीर मुजस्मे की जो दिखाई गई है, you can easily now discern which kingdom was coming after which kingdom. और आप उस सारा इम्तियाज कर सकते हैं कि कौन सी बादशाहत के बाद अगली कौन सी आ रही। So all the kingdoms are gone.
सारी बादशाहत चली गई हैं, One prophecy is yet to be fulfilled. एक इसमें नबूवत अभी बाकी है, The feet, the ground one. यानी जमीन वाली उसके पाँव का जो हिस्सा है, And then this stone is coming from the mountain और पहाड़ से एक पत्थर आ रहा है without any hands involvement. किसी हाथ की मुदाखलत के बगैर। He does not need you and me for bringing him. उसको लाने के लिए जरूरत नहीं है मेरी या आपकी। You know why I said this? Do you मैंने ये know? बात क्यों कही है Missionaries claim कि बहुत सारे मिशनरी ये दावा करते हैं that Jesus said that until and unless in the whole world the gospel will be preached, कि जब तक सारी जमीन पर जो है इंजील की मुनादी ना की जाए I will not come. तो मैं नहीं आऊंगा। They always resist on this one. और वो हमेशा इसी बात पर ही मुजामत करते हैं। But I'm telling you, he is not waiting for this. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बात का इंतजार नहीं कर रहा। Yet, those who denied the Africans for 400 years ago, missionaries went there in India's jungles and in Africa's jungles. They went there and they did the cannibalism with them. They ate them, their meat. The missionaries went there 400 years ago. Their forefathers were preached the gospel. मिशनरी जो है अफ्रीका में और इंडिया में 400 साल से गए Yeah, the missionaries went there, they preached the gospel. और उन्होंने कलाम की मुनादी भी की वहाँ। But the forefathers, they killed them and they ate their meat. लेकिन उनको मार दिया गया, बाउजदाद ने उनको मार दिया और उनको खा लिया। And still you are saying that no one has gone there and preached them. और अभी भी आप कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई गया नहीं और मुनादी नहीं हुई। They are suffering because their forefathers has taken a wrong decision. वो मुश्किल में इसलिए है कि उनके बाउजदाद ने गलत फैसले So they किए cannot claim that no one has come here and preached us. और ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं और कलाम नहीं सुनाया गया। Someone went there. जरूर कोई ना कोई वहाँ पर Your गया, forefathers killed them. लेकिन उनके बाउजदाद ने उन्हें मार दिया। That's why you are lawless people. इसीलिए आज लाकानूनियत नजर आती So है। Jesus will come without the involvement of any hand. यीशु आएंगे बगैर किसी मुदाखलत के। If you are reaching to the whole corners of the earth or you are not reaching, आप पहुंच रहे हैं सारी दुनिया के कोनों तक या नहीं पहुंच he रहे? is coming. वो आ रहा है, He is coming on his time वो अपने वक्त पर आ रहा है and he will destroy every other kingdom. और वो हर दूसरी बादशाहत को हलाक करेगा, तबाह करेगा। Those who are ruling brutally जो जुल्म के साथ हुकूमत चला रहे with हैं cruelty, और जुल्म कर रहे हैं, your time is soon over. उनका वक्त जल्द खत्म होने वाला है। Listen it, gird your waist. अपनी Church. कमरे कास लें Yeah, church get ready. और तैयार हो जाएं। The king of king, the genuine one is coming. बादशाहों को बादशाह, असली बादशाह वो आ रहा है। And when he will look with his eyes towards any king, और वो अपनी आंखों से देखेगा हर बादशाह को, the flames, the fire, और उसकी आंखों का शोला जो है, उसकी आग जो है, they will never be able to stand before. उसके सामने वो खड़े नहीं रह पाएंगे Nations will tremble. और कौमें कांप जाएंगी। I was once given opportunity to be in the 1000-year millennium, मुझे एक दफा जो है 1000 साल बादशाही का तजर्बा हुआ and I encourage you, और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। do what you are called to do. वो ही करें जिसके लिए आपको बुलाया गया है। The magnitude of your working on this earth इस जमीन पर आपके काम का हजम जो है, उसकी वसत जो है, is defining your authority in the 1000-year millennium. वो आपके इख्तियार को पेश कर रही है 1000 साल बादशाहत में। I'm giving you a secret. ये एक बड़ी राज और मुकाशफा की बात है। The number of people you are going to deal on this earth, the number of people you are, the magnitude of work you are going to do on this earth is defining your authority in the 1000-year millennium. जमीन पर अब जो आप रहकर काम कर रहे हैं वो 1000 साल बादशाहत में आपके इख्तियार को पेश करेगा। So you are actually attempting an exam to appear in the next class. इस जमीन पर आप एक इम्तिहान जो है वो दे रहे हैं, उसमें दाखिल होने के लिए। So God is carefully watching me, what I am doing with His assignments. खुदा जो है वो मुझे देख रहा है कि मैं इस असाइनमेंट को किस तरह कर रहा हूँ। And according to the abilities I am performing on this earth, I will be given charges. I will be given authorities. और जिस तरह से मैं जमीन पर रहते हुए काम कर रहा हूँ, उसी तरह का इख्तियार मुझे 1000 साल बादशाहत में दिया जाएगा। It's the reciprocal, और ये उसके मुतबादल है। directly proportionate. Is it mathematics? Yeah, directly proportionate. ये तनासब रखता है बराह रास्त उससे 1000 साल बादशाहत के इख्तियार से। The amount you are trustworthy here,
जितने यानी आप काबिल एतमाद काम जमीन पर कर रहे हैं अब, the exact amount you will be trustworthy there. और उतना ही आपको वहां पर जो है बहुत सारा बादशाहत में इख्तियार दिया It's जाएगा। your choice to sit down in the church and enjoy, और ये आपके पास चुनाव है कि आप कलीसिया में आराम से बैठे रहें, and it's your choice to work for the kingdom and then enjoy the authority. या आप दूसरा चुनाव करते हैं कि आप काम करें और इख्तियार को इस्तेमाल करें। Hallelujah. So as for me and for my wife, my family, we are working. हम बतौर खानदान जो है वो सब काम कर रहे हैं, We will be consumed for the kingdom expansion. और हम बादशाह की वुसअत के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Please.